Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss about a numerical on the N-channel MOSFET. And this numerical is one of the most favorite example that has been coming in the previous GATE examination regularly. So, if you look at this circuit one of the most important circuit that has been came in the previous GATE examination. So, we hope that in the upcoming examination, this type of circuit will be repeated. So, let us see the numerical first. So, in this numerical, for an N-channel MOSFET, VTN equals to minus 2 volt, Kn, that is the process parameter, it is half mu n COX W by L, that is equals to 0.1 milliampere per volt square, and find the value of VDS. We have to find the value of drain to source voltage और ये सर्किट गिवन है. अब देखो यहाँ पे ड्रेन VDD वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट. ये मेरा ड्रेन टर्मिनल, ये मेरा गेट टर्मिनल, ये सोर्स टर्मिनल. अब गेट और सोर्स दोनों शॉर्ट सर्किटेड है. सो गेट और सोर्स अगर दोनों शॉर्ट सर्किटेड है तो गेट पे ऊपर मेरा वोल्टेज क्या है? सो गेट के ऊपर वोल्टेज अगर VG होगा और मेरा सोर्स टर्मिनल पे वोल्टेज अगर VS होंगे, so we can say that the gate voltage will be equals to the source voltage. So we can say that the gate voltage will be equals to the source voltage. So from this configuration we can say that what will be the value of VGS? VGS value क्या होगा ये सर्किट का? अब देखो गेट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज दोनों सेम है. So we can say that VG minus VS, VGS का मतलब VG minus VS, और VG is equals to VS, so 0 volt. We can say that. So VGS value आपका 0 volt. अब यहाँ पे देखो ID करंट फ्लो हो रहा है, ड्रेन करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा. सो ये जो गिवन है ये ड्रेन करंट. अब आपको ये सोचना है कि ये जो मेरा ट्रांजिस्टर गिवन है, ये वाला ट्रांजिस्टर और मॉसफेट आपका कौन सा रीजन पे ऑपरेट हो रहा है. मतलब is this transistor is operating in the saturation region or it is operating in the linear region. So we have to find that first. So in this case, for finding that, if you look at the VGS value is 0. So we know that there was a condition that if the VDS value is greater than equals to VGS minus VTH, if it happens in any NMOS transistor or N-channel transistor, then the transistor will go into the saturation region. ये होता है. Now, ये जो VTH value होगा, this VTH value is very low, very low. If it is low, we can approximate this equation as the VDS will be greater than equals to VGS, because VTH is very low with respect, generally, normally VTH value आपका VGS से छोटा होता है generally. So we can say that VDS value is greater than equals to VGS, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे भी सोर्स, यहाँ पे भी सोर्स. So we can say that the VD value is greater than VG equals to VG. So approximately what we can say? Approximately we can say that if the drain terminal voltage is greater than or equals to the gate terminal voltage, then the transistor or the N-channel MOSFET will go into the saturation. This is not the exact equation. Exact equation आपका जो है, this is the exact condition you can see. This is the exact condition. उसी एग्जैक्ट कंडीशन को हमने यहां पे अप्रोक्सीमेट करके एक अप्रोक्सीमेट कंडीशन निकाला, जहां पे मैंने देखा कि ड्रेन टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा, दैट वोल्टेज इफ greater than or equals to this gate terminal voltage, then the transistor or the N-channel MOSFET will go into the saturation. So now let us find the drain voltage. अब देखो गेट वोल्टेज VGS वोल्टेज इज इक्वल्स टू 0. अब मेरा VGS माइनस VTH क्या होगा? सो VGS माइनस VTH, व्हाट विल बी द वैल्यू? VGS वैल्यू इज 0 और VTH वैल्यू क्या है? यहां पे देखिए VTH वैल्यू गिवन है, सो यहां पे -2 वोल्ट गिवन है.
So that means आपका VGS minus VTH value comes out to be 2 volt. अब आपका ड्रेन वोल्टेज क्या है? So drain voltage is, यहाँ पे आपका वोल्टेज होगा ड्रेन वोल्टेज, this is the drain voltage VD, and this VD is nothing but the VDD. So we can say that the drain voltage is equals to VDD, which is equals to 5 volt. So now from this data you can see that the drain voltage is greater than the VG value, greater than the VG value or gate voltage. So that means we can say that this transistor is right now in the saturation region for this configuration. So ये जो ट्रांजिस्टर है ये मेरा अभी सैचुरेशन पे है. अब सैचुरेशन पे अगर ट्रांजिस्टर है तो मैं बोल सकता हूं यहां से जो आईडी करंट फ्लो होगा, ये जो आईडी करंट है, सो दिस आईडी करंट इज नथिंग बट अ सैचुरेशन आईडी करंट. इट इज अ आईडी सेट. सो नाउ वी हैव फाउंड दैट ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन पे है, उसके लिए मेरा आईडी सैचुरेशन करंट फ्लो हो रहा है. नाउ if you remember the ID saturation current equation, what was the ID saturation current equation? The ID saturation current का एक equation था, ID saturation current का equation, a well known equation was half mu n COX W by L VGS minus VTH whole square, और उसके साथ आएगा 1 plus lambda into VDS. So this is a well-known equation for the N-channel MOSFET drain current equation in the saturation region. Now, what is this lambda? ये lambda क्या है? ये lambda आपका channel length modulation पैरामीटर है. और channel length modulation पैरामीटर के बारे में क्वेश्चन पे और न्यूमेरिकल पे कुछ डेटा गिवन नहीं है. Whenever in the examination आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आता है जहां पे आपका चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है बट आपका आईडी सैचुरेशन का करंट इक्वेशन यूज करना है, सो इन दैट केस इन बाय डिफॉल्ट यू हैव टू यूज द चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन पैरामीटर एज 0. सो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू यूज द लैम्डा इक्वल्स टू 0 बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द लैम्डा. सो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू यूज लैम्डा इक्वल्स टू 0. सो यहां पे मैं लैम्डा को 0 पुट करूंगा. सो दैट मीन्स दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0. सो इफ दिस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 आपका इक्वेशन ये वाला होगा. सो अब देखिए हाफ म्यू एन COX W by L, ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज गिवन बाय दिस 0.1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर. अब VGS माइनस VTH का वैल्यू क्या है? 2 वोल्ट. सो दैट मीन्स आई कैन पुट द वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ID set. So what will be the value of ID set? That is the drain current in saturation. It will be, ये वाला वैल्यू क्या है? 0.1 मिली एम्पियर. So 0.1 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर. उसके साथ मेरा ये VGS माइनस VTH वैल्यू क्या है? 2 वोल्ट. So it will be 2 volt square. So now in this case what will be the value? If you find the value, यहाँ पे देखिए 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर है. So that means we can say it is 0.1 into 4. यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएगा मिली एम्पियर, यहाँ पे मिली एम्पियर है, यहाँ पे वोल्ट स्क्वायर कट आउट होंगे तो मिली एम्पियर हो जाएंगे. So that means we will get the value as 0.4 मिली एम्पियर. So this is the value of the ID saturation current. So in this way we can find the ID saturation current. अब मेरे पास ID saturation current हो गया. अब मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना है कि ये VDS वैल्यू, मतलब ये वाला वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस द ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल. तो ड्रेन टू सोर्स टर्मिनल में वोल्टेज अगर ढूंढना है तो मुझे क्या करना होगा यहाँ भी? अब देखो यहाँ पे देखिए मुझे VDS वैल्यू चाहिए और मेरे पास ये जो ड्रेन करंट का वैल्यू है, सो दिस ड्रेन करंट वैल्यू is equals to 0.4 milliampere. So we can write here as 0.4 milliampere. So now the question comes, how to find the value of VDS from this circuit? We have got this data. So to say how to find the VDS value,
तो ये VDS वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, इसको देखने के लिए just go and subscribe the channel, and if you want more videos or like this on the N-channel MOSFETs or any devices, then just go and subscribe the channel and press the bell icon, then you will get notified for the new videos. Now let's find the value of VDS. अब VDS वैल्यू ढूंढने के लिए क्या करना होगा, आपको टेक्निक क्या है कि आपको यहाँ पे मेरा VDD वोल्टेज है, सो VDD वोल्टेज का मतलब यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से, जिसको मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा है, इसका मीनिंग ये वाला है। सो दिस इज नथिंग बट द VDD वोल्टेज। अब आपको क्या करना है कि ये जो सर्किट, ये जो लूप है, ये लूप में आपको KVL अप्लाई करना है। कहां से कहां तक, ये वाले डायरेक्शन में आपका KVL अप्लाई होना चाहिए, ये वाले डायरेक्शन में। So in this direction you have to apply the KVL। अब देखो KVL अप्लाई करेंगे यहां से लेकर यहां तक। सो यहां से लेकर यहां तक अब KVL अप्लाई करेंगे, व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म, सो यहां पे आएंगे माइनस VDD। सो आफ्टर अप्लाइंग KVL इन द आउटपुट लूप में मैं KVL अप्लाई करूंगा। सो पहला टर्म क्या आएगा यहां पे, माइनस VDD, सो माइनस VDD। उसके बाद ये नीचे जाएंगे, ऐसा घूमेगा तो पहला आएंगे प्लस VDS, यहां का वोल्टेज क्या है प्लस VDS, सो प्लस VDS। देन नीचे आएंगे, यहां पे RS इंटू ID सैचुरेशन है, तो यहां पे आएगा RS इंटू ID सैचुरेशन। अब ID सैचुरेशन के बाद ये ग्राउंड, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी द KVL इक्वेशन इन दिस लूप, ये मेरा KVL इक्वेशन है। सो इन दिस KVL इक्वेशन इफ यू लुक एट केयरफुली, ये VDD का वैल्यू कितना है -5, VDS का वैल्यू मुझे अभी चाहिए, ढूंढना होगा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VDS। RS वैल्यू कितना है 5 किलो ओम, देखिए सर्किट पे देखिए आपका RS वैल्यू गिवन है। ID सैचुरेशन का वैल्यू अभी अभी मैंने ढूंढा है कि 0.4 मिली एम्पियर, तो यहां पे मेरा 0.4 मिली एम्पियर, दिस इज द इक्वेशन। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VDS राइट नाउ, VDS वैल्यू मैं लिख सकता हूं कि VDS विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस ये वाला 5 इंटू 0.4, तो यहां पे आएंगे 5 किलो ओम मतलब 10 टू द पावर 3, और उसके साथ आएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3। सो 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर -3 कट आउट हो जाएंगे। सो नाउ आपके पास आया 5 माइनस 5 इंटू 0.4। सो 5 इंटू 0.4 का मतलब होगा आपका 2। सो दैट मीन्स आपका ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 2, दैट इज 3 वोल्ट। So you can see we have found the value of the drain to source voltage, और ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज वैल्यू आपका आया मेरा 3 वोल्ट। सो ये जो 3 वोल्ट हुआ, और यहां पे मेरा जो VGS माइनस VTH था क्या था 2 वोल्ट। सो नाउ यू कैन सी दैट VDS वैल्यू इज ग्रेटर देन द VGS माइनस VTH। VTH वैल्यू, ये वाला वैल्यू आपके पास था 2 वोल्ट यहां पे, और VDS वैल्यू मैंने जो निकाला यहां पे दैट इज 3 वोल्ट। दैट मीन्स मेरा जो यहां पे अप्रोक्सीमेट था कि VD वैल्यू ग्रेटर देन VG और सैचुरेशन है, तो मेरा ये अप्रोक्सीमेशन सही था कि मैं सैचुरेशन पे ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका VDS वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू VGS माइनस VTH। सो इन दिस वे वी हैव फाउंड the value of the drain to source potential by using the approximate condition, not the exact condition। exact condition आपका ये वाला था, उसको मैंने approximate किया, फिर उसको यहाँ पे वैल्यू निकाला, निकालने के बाद यहाँ पे मेरा VDS का वैल्यू आया, और मैंने चेक किया कि मेरा VDS वैल्यू और VGS वैल्यू माइनस VTH के साथ ये ग्रेटर देन हो रहा है। सो दैट मीन्स द ट्रांजिस्टर इज सैचुरेशन। So in this way we can find the value of the drain to source potential, and hopefully you have enjoyed the video, and thank you for watching the video.